Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Electrification and Energy Auditing. Here Salam instructor Nashita Alwas. The objective of your first lab is to study the basic introduction of ETAP software for electrification and energy auditing lab. The basic equipment needed for this experimentation is ETAP software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. Our lab is basically divided into the two parts, electrification and energy auditing. So electrification is the process of powering by electricity, and in many contexts the introduction of such power by changing over from an earlier power source. Electrification refers to the process of replacing technologies that use fossil fuel, coal, oil and natural gas with technologies that use electricity as a source of energy. So that conventional sources of energy basically producing carbon in our atmosphere. So that carbon will be reacted with the oxygen in our atmosphere and we have carbon dioxide. That carbon dioxide gas basically produce difficulties for human being. So we need that kind of energy sources which will not produce any carbon dioxide gas further in our atmosphere, because this carbon dioxide gas basically destroying our ozone layer also. So solar, wind and battery energy sources which are basically utilizing the natural energy sources for the production of electricity for us are helpful nowadays, because they are natural sources and they will not produce carbon dioxide gas emissions further in our atmosphere. So electrification is basically the concept of replacing the conventional energy sources with the natural energy sources. Second part of our lab is the energy auditing. Energy auditing is the verification, monitoring and analysis of use of energy, including submission of technical report containing recommendation for improving energy efficiency with cost benefit analysis and action plan to reduce energy consumption. Energy audit is basically an inspection survey. Means we are basically doing analysis for our power flow. हमें एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, जो हमारे सिस्टम में एमिशंस भी प्रोड्यूस ना कर रहा हो, लेकिन हमें एनर्जी प्रॉपरली फॉर्म में दे रहा हो. जैसे जैसे हमारे आजकल लाइफ में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि आप लोग अपनी कॉस्ट को कंसीडर करते हुए एनर्जी की डिमांड्स पूरी कर सकें. तो ऐसे पॉइंट पर, ऐसे टाइम पर हमें ऐसा एफिशिएंट एनर्जी सोर्स बनाना होगा, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को यूज करना होगा जो बेसिकली कॉस्ट में भी कम हो और हमारी एनर्जी डिमांड्स को एफिशिएंटली पूरा कर सके, और इसके अलावा हमारी जो है कार्बन एमिशंस जो एटमॉस्फेयर में है उनको इंक्रीज ना करें. तो इस टाइप के इंस्पेक्शन सर्वे के प्रोसेस को आप लोग इलेक्ट्रिफिकेशन, एनर्जी ऑडिटिंग बेसिकली कह रहे होते हैं. इलेक्ट्रिफिकेशन की हमने अभी बात की है कि वो बेसिकली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है, जबकि एनर्जी ऑडिटिंग जो है उस एफिशिएंट सोर्स को का इंस्पेक्शन करता है, उसका एनालिसिस करता है कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए कॉस्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट हो सकता है उसका, और किस तरह से वो हमारी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकता है, और किस टाइम पर हम लोग कन्वेंशनल सोर्स को यूज करें तो हमारे लिए बेटर होगा, किस टाइम पर हम लोग नेचुरल सोर्सेज को यूज करें तो हमारे लिए बेटर होगा. सो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा हमारा सिस्टम है जो कि रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल सोर्सेज को विद द नेचुरल सोर्सेज, जबकि एनर्जी ऑडिटिंग जो है उन नेचुरल सोर्सेज को लेते हुए एक प्रॉपर इंस्पेक्शन सर्वे बना रहा है कि किस तरह हम एफिशिएंटली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉस्ट एंड गैस एमिशंस एंड डिमांड्स आल्सो. सो व्हाई द नीड फॉर एनर्जी ऑडिट? As I have already talked about this, the three top operating expenses nowadays are energy, like for example electrical and thermal, labor and materials. Energy would emerge as a top ranker for cost reduction. हमें एक ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो. So primary objective of energy audit is to determine ways to reduce energy consumption per unit of product output or to
लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें हमारी एनर्जी डिमांड को भी पूरा कर रहा हो, अगर हमारे पास कहीं पर फॉल्ट्स आ रहे हैं सिस्टम के उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहा हो, कहीं पे लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का उसको आइडेंटिफाई कर रहा हो, ताकि हम उस लीकेज को रिड्यूस करते हुए अपनी कॉस्ट को बचा सकें, हम अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकें. सो एनर्जी ऑडिट बेसिकली प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क रेफरेंस पॉइंट फॉर मैनेजिंग energy in our organization, in our homes, in our country. Now we will discuss about the steps of the energy auditing. Here we have 6 steps for the energy auditing. First one is the measurement. We will consider all type of energy sources. हम देख लेंगे कि किस एनर्जी सोर्स का बेसिकली क्या बेनिफिट है, उसके प्रॉपर पॉइंट्स देख लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर मैं इस सोर्स को कंसीडर करती हूँ तो जो है मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इतना लॉस होगा अगर यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा जो है फॉल्ट अकर होता है सिस्टम में, तो ये सोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं, इसकी कॉस्ट किस तरह से इफेक्टिव होगी, सारी कैलकुलेशन कर लेंगे. देन थर्ड स्टेप में हम लोग जो है वो प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग किस तरह से करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर मैं इस टाइम पर इस सोर्स को फॉर एग्जांपल सोलर को एक स्पेसिफिक आवर्स के अंदर मैं ऑन करती हूँ और एक स्पेसिफिक आवर्स के अंदर मैं बैटरी को यूज करती हूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि जब मेरे पास सोलर इजीली अवेलेबल हो तो मैं उसको यूज कर लूं और अपनी कॉस्ट जो मेरे पास वापडा से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको बचा लूं. तो प्रॉपर प्लानिंग करूंगी कि इस स्पेसिफिक आवर्स के अंदर मुझे ये सोर्स यूज करना है और बाकी आवर्स में मैं वापडा वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लूंगी. तो प्रॉपर प्लानिंग थर्ड स्टेप है एनर्जी ऑडिटिंग का. फोर्थ स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, कि जो मैंने प्लानिंग की है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं, उसके लिए प्रॉपर सेटअप लगाऊं और उसको देखूंगी किस तरह से हो सकता है मेरा सिस्टम प्रॉपर फॉर्म में इम्प्लीमेंट. देन जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन का एक स्केच बनाया है उसको मैं सेव कर लूं अपने पास, कि मेरे पास पूरा कंसीडर हो जाए कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, पूरे पॉइंट्स में कंसीडर कर लूं और अपने सेटअप को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूं. लास्ट स्टेप ये है कि मैनेजमेंट हम कर रहे हो, मतलब हमारा सिस्टम ओवरऑल बिल्डअप हो चुका है, सेव हुआ था, प्रॉपरली हुआ है, हमने अपने पावर सिस्टम जो हमने जनरेट किया है, सिस्टम बनाया है, उसको हम मैनेज करें, उसको स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको हम वर्किंग में ले आए हैं. इन दिस लैब बेसिकली वी विल यूज ETAP सॉफ्टवेयर फॉर आवर पावर सिस्टम एनालिसिस. So what is ETAP software? ETAP is a full spectrum analytical engineering software which is basically developed by Operation Technology Corporation. This software specializing in the analysis, simulation, monitoring, control, optimization and automation of electrical power system. ETAP software offers the most comprehensive and integrated suite of power system enterprises solution that spans from modeling to operation. तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है हमने अपने पावर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, उसकी मॉडलिंग करनी है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है कि कोई भी सिंगल लाइन डायग्राम को मैंने उठाना है, उसको अपने जो है अपने पावर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देना है, ट्रांसफार्मर्स अटैच करने हैं, वायरिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए मॉडलिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, सिमुलेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है. इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल है, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है कि अगर मैं ये सोर्स इस टाइम यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या इफेक्ट होने वाला है, उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस जो है वो सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकता है. So here I have the importance of the ETAP software for electrification and energy auditing lab. क्यों हम ETAP software को ही electrification and energy auditing lab के लिए यूज करें? Because ETAP software provides a good interface for performing rigorous analysis on electrical power system. Like one of them is the transient analysis. Transient analysis क्या होता है कि मैंने एक सोर्स को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑन किया और उसके बाद बंद कर दिया और दूसरे सोर्स को ऑन कर दिया. अब जो सोर्स को बंद करना हो ऑन करना है उस टाइम पे सिस्टम में फ्लक्चुएशन होती है. ठीक है, मैंने एकदम से एनर्जी का एक सोर्स बंद कर दिया तो एनर्जी मेरे सिस्टम पूरे घर को या मैं अगर इंडस्ट्री चला रही हूँ उसको नहीं मिलेगी. तो उस टाइम पे जो सिस्टम में फॉल्ट अकर होंगे उसके एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. फर्स्ट थिंग इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है. सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत सारे एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है. लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैंने ये देखना है कि मेरा सोलर बेटर है इस टाइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट माई विंड, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत हेल्पफुल है कि मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, मैंने देखना है कि कौन सा सोर्स मुझे ज्यादा फिजिबल है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ETAP सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एनर्जी ऑडिटिंग लैब. Here I have the basic graphical user interface
of the ETAP software, in which you can see the project view. Means we have different already created projects, and you just double click on them and open them. And then we have system toolbar, and then we have one line diagram, means the system in which we will generate our power system. And at the very downside of this window we have helpline item, and on the right hand side we have message logger, means अगर हमारे सिस्टम में कोई एरर अकर होता है तो वो हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैंने जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाई है या मैंने जो पावर सिस्टम जनरेट किया है उसमें कोई एरर है, तो जैसे ही मैं रन करूंगी मेरे पास मैसेज लॉगर यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास इस सिस्टम में ये एरर है। नेक्स्ट थिंग है एडिटिंग टूल बार, मीन्स मेरे पास एसी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर मैंने अपने सिस्टम के अंदर एसी एलिमेंट्स को प्लेस करना है, एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करना है, कोई डिवाइस अटैच करनी है, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। और सबसे फर्स्ट पे आप लोगों के पास जो है वो मॉड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्टडी मॉड्स, एडिट मॉड्स अवेलेबल हैं। लाइक अगर मैंने लोड का एनालिसिस करना है अपने सिस्टम में तो उसका एक लोड फ्लो एनालिसिस का मॉड अवेलेबल है। अगर मैंने अपने सिस्टम में शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करना है तो उसका एक मॉड अवेलेबल। तो जो एनालिसिस मैंने करना है मैं उस मॉड में जाऊंगी और मैं उसको सेलेक्ट करते हुए उस एनालिसिस को परफॉर्म कर लूंगी। बेसिकली ETAP toolbar has divided into the different types of toolbar. First one is the mod toolbar. mod toolbar के अंदर बहुत सारे मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से हैं कि लोड फ्लो एनालिसिस है, मेरे पास शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है, मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन का एक एनालिसिस है। तो मॉड टूलबार के अंदर जो जो हम अपने पावर सिस्टम के साथ एनालिसिस कर सकते हैं, जिन जिन वेज से एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारे मोड्स अवेलेबल हैं। So basically 3 mods are present in ETAP software. First one is load flow, second one is unbalanced load flow analysis, then we have short circuit analysis, then we have motor starting analysis, then we have harmonic analysis. Sixth one is the transient analysis, which is very important. Seventh one is the star production coordination analysis. Then we have optimal load flow, means हमें जो है कौन सा optimal source है हमारे पास और उस सोर्स को यूज करते हम अपने लोड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। Then we have basically the reliability analysis, then we have optimal capacitor placement analysis. 11th analysis is basically DC load flow. 12th analysis is basically DC short circuit analysis, and last one is basically battery sizing analysis. Then we have analysis toolbar. अगर मैंने अपना जैसे मैंने 3 पीछे आपको एनालिसिस बताया, उनमें से अगर मैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करती हूँ कि मैंने लोड फ्लो एनालिसिस अपने पावर सिस्टम पर जो है वो ऑपरेट करना है, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगी उसके जो फर्दर आगे मुझे टूल्स अवेलेबल होंगे उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, उसको आप लोग बेसिकली एनालिसिस टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास एग्जांपल अवेलेबल है वो है लोड फ्लो एनालिसिस की, कि मैंने अपने पावर सिस्टम के साथ लोड फ्लो एनालिसिस परफॉर्म करना था, मैंने लोड फ्लो एनालिसिस पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर 7 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मैं रन द कैलकुलेशन कर सकूं, जो भी मेरे पावर सिस्टम के अंदर एक्टिव पावर आ रही है उसको देख सकूं, रिएक्टिव पावर आ रही है उसको देख सकूं, उसको डिस्प्ले कर सकूं और डिस्प्ले अलर्ट्स मुझे मिल सकें और मैं 1 लाइन का डाटा हासिल कर सकूं। तो मेरे पास 7 स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। अगर मैं शॉर्ट सर्किट एनालिसिस पे क्लिक करती हूँ तो उसका एनालिसिस टूल बार आगे डिफरेंट होगा। So this is our introductory lab of the electrification and energy auditing subject. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me.